Janjua. Dr. Rashid Wali Janjua holds a PhD in Peace and Conflict Studies from NUST. He is a graduate of Canadian Forces College, and he holds a master's degree in Security and Defense Management from Royal Military College, Kingston, Ontario. Dr. Janjua has served in various command and instructional assignments, including Pakistan Military Academy and Command and Staff College. He has held the command assignments of an infantry brigade. He has been the headquarters corps engineers, planning cell chief of the Army Staff Secretariat, Ministry Training Directorate, and Director Works and Chief Engineer, Pakistan Navy. I would request Brigadier Retired Dr. Rashid Wali Janjua to please address his, deliver his address. Welcome remarks. With your permission, sir. Sir, please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Kaleem Imam, Ambassador Nagmana, and distinguished visitors. It's a proud privilege today to stand here and host the book launching ceremony of one of the research products by Dr. Kaleem Imam. Dr. Kaleem Imam needs no introduction. He is one of a rare combinations of a thinker practitioner, and he combines in him an eclectic mix of the best that a practitioner could offer: moral rectitude, integrity, and professional competence. It's a very unique combination. And we have been recipients of his intellectual prowess in the past, and we have profited by his insights through several interactions on roundtables and one-on-one inputs. And I'm sure he's got places to go and still a very productive phase of his life. On a personal plan, I have been associated with him since very long. Once I was a young lieutenant colonel and he was a not so young, but I think younger SSP. We used to play tennis very regularly, very competitively on GHQ courts in 98, 99. Today when I stand and say these words to introduce a book launch ceremony, I'm conscious of my limitations. And I'm reminded of a quote by Abraham Lincoln that the brave man, both living and dead, has consecrated this ground far above our powers to add or detract. History shall little note nor long remember what we say here, but it shall never forget what they did here. It is the man on the ground and the way he has practiced his craft, the way he has shown fidelity to his principles, the way he's viewed life, and the way he's now reflecting in the shape of a fructified, well-written product that I'm sure is going to be very useful for the posterity. When I had a glimpse on the topic of his book, so I was quite bemused. It's such a loaded topic that an entire book entirely could be written on ethical state itself without going further into his topic. So as far as the ethics and ethical state and their reflections go, I'm reminded of Nicomachean ethics, the classic Greek ethics. And when I read that, the only notion I internalized was that the highest good in life was doing the right thing and deriving pleasure in happiness. So happiness in doing the right thing, standing with the truth and saying the truth. And I'm sure he's a living embodiment of that. His book indeed is a treasure trove of his personal insights and some of the recommendations. I'm sure there are certain nuggets that is going to be very useful for the policy makers, academics also, and the young students who are looking forward to a role model.
And I'm sure that this will not be the last of his intellectual products, and we look forward to many such books in future as well. So today when we stand here, we would like to hear from the author himself what he has to say about the book and his intellectual labor of love. And I would personally wish that the audience takes an active interest and asks searching questions to extract the best and pick his brains, and because that's the best on offer that the country can showcase. And we would also like that an abridged version of the same product is put up in a format that appeals to the sensibilities of the Gen Z, whose attention span is only 16 seconds. So rest assured, sir, we'll put it in some infograph shape also, and we'll pick up pieces, convert it into social media products so that it gains most traction on social media platforms. Without much ado, I think I'll not like to interpose myself between the audience and the author. So over to you, sir, for your discourse. It will be followed by the questions from the audience on your labor of love. Thank you. Sir, if I may please intervene. Before you share with us your insight, I would take the liberty to please introduce our chief guest. Dr. Syed Kaleem Imam is a former public servant known for his extensive contributions in law enforcement, academics, and organizational development. He has a PhD in politics and international relations and an LLM in human rights law from SOAS, United Kingdom, and he also holds a master's degree in philosophy. He held the position of Inspector General of Police in several regions, including Punjab, Islamabad, and Sindh. He has also served twice on the National Highways and Motorways. As the Federal Secretary of the Narcotics Control Ministry, he has played a key role in formulating national policies. He has been the Chief of Operations in Mozambique, Planning Coordinator in Liberia, and United Nations Police Commissioner in Darfur, Sudan. Moreover, Dr. Imam has been instrumental in shaping academic discourses. He is known, the way he is known in his fraternity is Philosopher Cop. So he is also the author of Kotwal Nama, Zawal Ka Uruj, and this is, I guess, his second publication that he is going to share his insight with us. So I welcome you, sir, here. Please, the floor is all yours. I have your permission, sir? Distinguished guests, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम जी. सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए. And I'm amazed that I see so many excellencies over here, ambassadors over here, and few police officers. So I guess the ambassadors are looking more for an ethical state than the law enforcers themselves. But we have some eminent police officers over here, and I'm grateful that you allowed me to come over here and speak. My special thanks to IPRI sir and Ambassador Raza, and Brigadier Wali has also been my teacher in many sense. I have learned so much from him in my life, and IPRI has been a great source of learning for me. And the best part is कि यहाँ आके जो मर्जी बोलें कुछ होता नहीं है. तो ये पहले कह देते कुछ नहीं होगा, आप बोलें हम सुनने के लिए तैयार हैं, और आप बोलेंगे तो हमें एंटीथीसिस मिलेगी. तो हम तो कोशिश करते हैं कि अपना एक पर्सपेक्टिव पेश करें, कुछ एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली उससे ये होगा कि यू कैन जनरेट सम मोर थॉट्स. दैट इज़ द अल्टीमेट पर्पस. If you don't speak from all the angles, probably just looking one side of things, and you may not know the ultimate truth, which is probably the purpose in the end. So I'm grateful to you, sir. Thank you very much for inviting me. Well, about my book, it's a book that I have written in about almost 2 years. When I was serving as a police officer, I started writing. In fact, my first career was a lecturer. I studied philosophy, and when I was studying philosophy, everybody used to make fun of me, and they used to say कि क्या मुस्तकबिल है, क्या करोगे तुम, फ़लसफ़ा पढ़ोगे. So, but philosophy was a combination of two Greek words. Philein means to love, and Sophia means wisdom.
So it was love for wisdom. And you can actually try to find out who you are and what are you doing in this world, or how much time you're going to spend over here. हमने कितनी देर इस दुनिया में रहना है और वक्त कैसे गुजरेगा. हम जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं इनकी 35-40 साल का कैरियर है. How are they going to live that 35 years? I spent about 34 years in civil service before I retired, and many of my colleagues maybe 35 and plus. इस 35 साल को कैसे गुजारना है, हमसे पहले कितने लोग आए, हमारे बाद में कितने लोग आएंगे, हम अपने वक्त में क्या करके जा सकते हैं. That is, we must keep on pondering and introspecting. So I studied philosophy and everybody made fun of me, and when I was teaching philosophy, more fun was made of me. But as I joined civil services, I wanted to go to foreign service, which was my first choice. And I landed in police, which was my third choice. So I stayed 10 years in Balochistan, but I didn't stop my studies. This is for youngsters. So मैंने LLB भी किया, फिर LLM भी किया, फिर PhD भी की. और रिटायरमेंट के बाद लोग पूछते हैं कि ठीक है आपने बड़ी आईजीशिप की होगी, आप ये बताएं कि अब आप कितने हैंडी और यूज़फुल हैं. जावेद मियादाद ने हज़ारों रन बनाए होंगे, लेकिन लोग उससे अब ये पूछते हैं कि तुम अब हमारे किस काम के हो. तो मेरे ख्याल से पढ़ाई मेरे काम आ रही है. और मैं अगर लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और जो मैंने देखा अगर मैं ऑनेस्टली उसकी बात करूँ ताकि लोग सीख सकें. यू कैन से मैनी अनप्लेजेंट थिंग इन अ वेरी प्लेजेंट मैनर, एंड दैट शुड बी द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन. हमारे यहाँ एक नया रिवाज है गालम गलोच का, रुस्वा करने का, बेइज्जती करने का, डांट डपट करने का, साइड लाइन करने का. जो एक कल्चर है हो गया है जो नहीं होना चाहिए. वी कैन से द वर्स्ट ऑफ द थिंग्स इन द मोस्ट प्लेजेंट मैनर एंड कन्वे अवर मैसेज. सो मेरी जो किताब है प्राइमरीली इट्स लाइक like I said, this IPRI, I've been coming over here, which started in 1999. It's a leading think tank, 74th in the University of Pennsylvania. Ji. It's a great achievement. So primarily my book is 34 years of service and understanding and research, what I did. You can say it's a blind date with knowledge and experience and observation. And I did came up with some conclusion in the end, and I'm still trying to find out what is there in the end. I'm still trying to get myself awakened. And I believe that empty mind needs to be open, and people who have actually seek knowledge, like they have learned it one, they are the learned one, or they know about things, they should go through the process of de-learning and relearning. That is so important. So we have another ambassador over here. So you see, so we have a Ministry of Foreign Affairs over here. So we must go through the process of learning and relearning and de-learning. और मेरे ख्याल से जो हमने छोड़ दिया है. As I grew up in my service over the years, I believe that we must all understand and respect all the perspectives. जब मैं IG बना, मैं पहला IG बना, और मैंने सबसे पहले सवाल ये किया जब मैं इस्लामाबाद का IG था कि क्या IG की कोई ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग होती है. तो आधे ज़्यादा लोगों ने कहा कि इसको सीट चलाती है, और you will just do things on the job and you will learn accordingly. For me that was quite shocking. चले मैं तुक्के में IG लग गया, जो भी हुआ, लेकिन ये कि I wanted to know what an IG does, and it took me years to understand what actually his task is, and what is the task of the person who is actually in organization. On a lighter note, when I went to Sindh and I was speaking to my command over there, my juniors over there, and you आप उनसे बात कर सकते हैं, मैंने उनको बताया कि मैं आज आपको बताऊंगा कि अच्छा IG कैसा होता है. तो एक ने हाथ उठाया, उसने कहा सर ये ना बताइएगा अच्छा IG कैसा होता है, आप सिर्फ ये बताएं IG लगता कैसे है. So they were more interested to find out कि IG लगता कैसे है. उन्होंने कहा बाकी हम संभाल लेंगे. So my book, over here is primarily a 369 pages book. It has 8 sections and 52 articles. And जब 52 articles बने खुद ब खुद ही आया. I didn't want it to be a house of card like thing, but then I went to it says that life is not a matter of holding good cards, but of playing a poor hand well. So let's try to play a poor hand well. अगर resources नहीं है, interference है, काम आपको करने नहीं दे रहे हैं, it's difficult to flow, and you are trying to flow against the bad current. It's like playing your card well. So
like you can say it has 52 articles, so it's like 52 weeks of the year. So primarily the book is about the societal dilemmas. How did I grow? How did I see my organization growing? And how did I see the society changing? And how did I see what was happening? We transform in many way. बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से हुई. लेकिन ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था कि मैं तो तरक्की करता चला गया, लेकिन जो मेरा महकमा था वो उस तरह तरक्की नहीं कर रहा था. I started as an ASP and I became an IG. But my organization, has it also become an IG and it has also progressed the same way? Like individuals in an organization are progressing. हम फॉरेन सर्विस में आए और हम थर्ड सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी लगे, एम्बेसडर्स लगे. क्या फॉरेन सेक्रेटरी ऑफिस एक एम्बेसडोरियल सेक्रेटेरिएट बन चुका है? क्या पुलिस ने भी उतनी तरक्की की 5-6 टीयर्स की जिस तरह मैंने तरक्की की? सो दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी कि वो महकमा जिसके बारे में इतनी बातें की जा रही थी और कहा जाता है कि दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा, एंड आई वॉज प्रोग्रेसिंग इन दैट एंड माई कोलीग्स वे प्रोग्रेसिंग इन दैट, बट द ऑर्गेनाइजेशन वॉजंट प्रोग्रेसिंग दैट वे. People were still questioning its performance, its efficiency, its transparency, its accessibility, its image, its accountability, its corruption, and people were talking about the organization. So again, that was a strange dilemma. But anyhow, the book is about the failure of leadership. I believe कि अकबर बादशाह के ज़माने में वो मनपसंद लोगों को इंतखाब करता था, जो हम जिस तरह देखते हैं, और शायद अच्छे लोगों को भी उसने मुंतखब किया. लेकिन अब क्या, अब तो CSS के थ्रू लोग आते हैं, इम्तिहान के थ्रू आते हैं, दे गो थ्रू वेरियस टीयर्स ऑफ सिलेक्शंस. सो व्हाई आर दे डिफरेंट, व्हाई दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पीपल दैट वी आर एक्सपेक्टिंग? और किस तरह आप किसी को चुनते हैं? ऐसे ही चुनते हैं ना कि एग्ज़ाम लेते, मेडिकल लेते, साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम लेते, इंटरव्यू करते. और क्या बेस्ट मेथड हो सकता है? इन सर्विस में आके शायद आप उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करना शुरू करते. द बुक इज़ अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट. वी कुड हैव डन मच बेटर. हमने तरक्की ज़रूर की और अच्छा काम किया. क्या हम वो चीज़ हासिल की जो हम कर सकते थे या करना चाहिए था? इट्स अबाउट लॉस अपॉर्चुनिटीज़. हम इससे बाहर नहीं निकल रहे. हम वी आर लिविंग इन डिनाइल. वी डोंट वांट टू डू कोर्स करेक्शन एंड वी स्टिल बिलीव दैट बाय डूइंग द बैड थिंग्स विल बी प्रोड्यूसिंग समथिंग गुड. द पर्पस वाज, could we build a better just society? Could we talk about equity and could we talk about transparency? The book is book is in the end, or in every chapter you can see, is call to action, is to rediscover the purpose, the diversity and rekindle its shared dreams. जिस ड्रीम से हमने पाकिस्तान बनाया है, क्या उस ड्रीम्स में या एक अच्छी सोसाइटी के जो ड्रीम्स हैं, क्या हम उसको रिकिंडल कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं और उसको दोबारा उस तरह कर सकते हैं? अगेन दैट्स अ थॉट. बाय सेइंग दिस, इसका मतलब नहीं है कि काम नहीं हो रहा. क्या हम काम बेहतर कर सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन. हम गालिबन काम उस तरह नहीं बेहतर कर रहे. अगर आप दुनिया के इंडिकेटर्स उठा के देख लें किसी चीज़ में भी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम, any other, you will see that we are the backbenchers. You can say it's a propaganda and you can say that people are after us. You can say there are hostile people who are not allowing us to actually progress. But the fact remains that we are also not performing. We are also not making runs. We are also not taking catches and also not taking wickets. There is an issue. There is an issue. मैं हमेशा सुनता था कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज़हीन हैं और दुनिया में जाके तरक्की करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में क्या हो जाता है? मैं जब पीस कीपिंग करने गया, 3 मिशन में मैंने पीस कीपिंग की. आई हैव हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स. मेनी ऑफ देम वुड से, गो एंड डू पीस कीपिंग इन योर ओन कंट्री. दे वुड से दिस एंड आई से, वी हैव डन इनफ एंड वी हैव कम टू हेल्प यू ओवर हियर. और हम ज़ाहिर बात है अपना जो जवाब दे सकते थे हम देने की कोशिश करते थे. दी essays, you know, it reflects, अगर आप देखेंगे उसके चैप्टर्स तो very quickly you can see that it talks about the state of a nation and institutional reforms. It's talking about good governance, about human rights, the distressing realities of the state of governance. और मैंने कोशिश की इस किताब में जितना मैं बोल सकता हूँ और प्लेजेंटली बोलूँ और बात करूँ. अशफाक अहमद साहब की एक बात है कि बच्चे ने माँ से कहा कि मैं किताब लिखने लगा हूँ और सच लिखूँगा. तो
तो उसकी वालदा ने कहा बेटा सच ज़रूर लिखना लेकिन अपने बारे में लिखना। तो दूसरों के बारे में सच लिखना भी जो है वो एक मसला बन सकता है, लेकिन यू कैन पोलाइटली say that. So my books go, it's to go over in the mind, think, take time to deliberate, and it's someone who, it's not about overthinking, but they say overthinking, if burned calories could make us a supermodel. ये भी लोग कहते हैं. So हम उसको positively भी देख सकते हैं. So section 1 actually deals with the love for wisdom, and I believe that कि हमारे आगे जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, which is literacy, education, and good education. You see in Japan, like Ambassador Assad has been, they would teach their children how to be a good citizen, a good person, then to be a good educated person in the end. अपनी सफाई कराते हैं कमरों की, चीज़ें कराते हैं, हाथ से काम कराते हैं, और फिर वो बताते हैं कि कितना अहम है. हम जो लोग यूएन में रह के आए ना, हम बूट पॉलिश खुद करते हैं, हम कपड़े पे इस्त्री खुद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कल्चर आम जगह पे नहीं है. Once you move on, you believe that these are menial jobs not to be done, which is to be done actually. It's about love for your country. और मुझे इससे याद आता है कि मेरे उस्ताद थे अरशद करीम साहब, और उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी, और उस किताब का जो छोटा सा एक मैं आपको सुनाऊं, एंड जो मेरा चैप्टर है हाउ टू लव योर कंट्री. अरशद करीम लिखते हैं, he bemoaned the fact that he wrote a book and the name of the book was From Community to Nation. He bemoaned the fact that a better title may have been From Nation to Communities. After writing a book, he believed that this could have been the title of his book. But today I keep on pledging to my fellow colleagues and citizens that we should stop playing pranks as we have been doing in the past, and we have paid a very heavy price for that. And I also say that love your country the way you love your home, your house. अगर आप अपने मुल्क को ऐसे मोहब्बत करना शुरू करें जैसे आप अपने घर से करते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों का मसला हल हो जाएगा. And I have tried to give arguments to that effect. I have spoken about intellectual dishonesty. हम देखते हैं एक टोला आता है, for decades we have been seeing this. एक टोला आता है, they make a decisions, another comes, he makes a different decision. Then another comes, he makes a different decisions. So we don't know which directions we are moving. So that also moves us towards disaster. Course correction की मैं बात कर रहा हूँ. And then I talk about the ethical state. People would say, like even one of my colleague over here said that, can state have an ethic? I say they can't be a state without an ethic. By ethics meaning making a difference between what is right and wrong, what is good and bad, what ought to be, what ought not to be. You have to make a decisions. दुनिया में जितने मुल्क जिनको आप बुरा भला कहते हैं, उनके यहाँ अपनी गवर्नेंस ठीक है, अपना सिस्टम ठीक है. वो अगर करते भी हैं बुराई तो जो जायज़ नहीं है और जस्टिफाइड नहीं है, they would do it for others, but that is again a crime. I'm not justifying it, but they don't do it with their own people. They provide justice to them. I would like to stop here and take questions and then move ahead. Just to give you an example, पाकिस्तान में तकरीबन 2000 थाने हैं. हम तकरीबन 10 लाख के करीब FIR दर्ज करते हैं, और अगर हम हर पर्चा को दर्ज करना शुरू करें तो 30-40 FIR, 30 लाख या 40 लाख FIR हो जाए. पर्चा हम इसलिए नहीं करते कि लोग हमसे डरते हैं, आते नहीं हैं, घबराते हैं. हम खुद नहीं करते कि काम बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, और हम नहीं करते कि ये शायद झूठी दरख्वास्तें. हम बहुत सारी वजूहत दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम क्राइम रजिस्टर करें तो 30-40 लाख से भी ज़्यादा चला जाए. सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स की वजह से क्राइम. 2000 थाने हैं, 5.5 लाख के करीब फोर्स है, 650 के करीब PSP ऑफिसर्स हैं जो उसको कमांड कर रहे हैं. उसका रेशियो आप देख सकते हैं. पाकिस्तान में वी हैव 4110 जजेस और कोर्ट्स. they have a shortfall of 25%. हम अदालतों के जजेस की जो तादाद है वो ही नहीं भर पाते, for one reason or the other. And more than 20 lakh cases are pending in the court, जिनका फैसला ही नहीं हुआ. यानी जो लोग पकड़े गए अदालत में अब ट्रायल का इंतज़ार कर रहे हैं. पाकिस्तान में 116 प्रिजन्स हैं, 56,000 लोगों को आप इनमेट्स रख सकते हैं वहाँ. तकरीबन 86,000 लोग जो हैं इस वक्त अदालत जेलों में बंद ओवर डिकेड्स नाउ, और उसमें से 66% लोग वो हैं जो अंडर ट्रायल हैं,
इनका सिर्फ ये फैसला होना है कि ये वाकई में मुजरिम है कि नहीं है, अभी इसका ट्रायल होना है. सो इफ़ दैट इज़ द नेचर ऑफ द सिस्टम एंड ड्यू प्रोसेस, justice is a far cry. So what I'm trying to say is that we can improve, we can move ahead, we can do better things, but how, who will bell the cat, who is going to take the first step? But again, all these steps come from the question of accountability, holding people accountable and making them responsible for the things that they have done. But we get away. Even the worst events and incident in this country, people have got away. It was a question कि at least someone should have been sorted out कि ये काम हुआ है. और मसन 71 की हम बात करते हैं, बल्दिया टाउन की बात करते हैं, 12 मई की बात करते हैं, और बहुत सारे आप ऐसे वाक़यात उठा सकते हैं. Why wasn't somebody or even one person held responsible? So if you allow that to happen, there will be others who will take their chances and they will move around. And section 3 again I discuss about the apolitical policing कि भाई interfere ना करें, जो जिस इदारे के लोग हैं उनमें महारत पैदा करें, उनको अच्छा काम करने की सलाहियत पैदा करें, होल्ड देम अकाउंटेबल, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. और ऐसे ही है जैसे बावर्ची का काम बावर्ची करेगा और चौकीदार का काम चौकीदार करेगा, और जिसे आप कहें कि गाड़ी ड्राइवर का काम ड्राइवर करेगा, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें. और अगर ये एक दूसरे का काम करना शुरू करेंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी, और ये ना करें. और जहाँ तक सिविल सर्विसेज और लीडरशिप का सवाल है, टेन्योर दें. वी हैव अ कोर्ट ऑर्डर्स विच से यू कैन नॉट रिमूव एनीवन बिफोर 3 years. आई थिंक फॉरेन सर्विस पीपल आर पोस्टेड फॉर 3 years, बट इन आवर केस वी लुक फॉर द ब्रेकिंग न्यूज़. मुझे तो अक्सर अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की खबर टीवी से पता चली है कि भाई टीवी खोलें तो उसमें आ जाती थी कि आप हटा दिए गए. 4 चैनल आपकी तारीफ़ कर रहे होते थे और 4 चैनल आपकी बुराई कर रहे होते थे कि बहुत अच्छा हुआ, ये तो था ही ऐसे, इसको पहले निकाल देना चाहिए था. टेन्योर दें, ऑपरेशनल एटोनमी दें, जिसका जो काम है उसको करने की सलाहियत पैदा कराएं और करने दें. बावर्ची नहीं खाना बनाना है, आप जाके नहीं कह सकते कि उसको क्या क्या आपने रेसिपी देनी है. हमारे काम में सारे स्टेक होल्डर्स इंटरवीन करते हैं, इंक्लूडिंग आवर ओन बॉसेस, पीपल फ्रॉम कम्युनिटी, वेरियस स्टेक होल्डर्स. दे वुड हैव देयर इंटरेस्ट एंड दे वुड कम एंड से कि इसको ऐसा कर लो. भाई कैसे कर लो, फिर उसका वो टेस्ट नहीं आएगा खाने में. गाड़ी कैसे चलानी है, सब बता रहे हैं कि अभी इधर मोड़ लो उधर मोड़ लो, गाड़ी कैसे चलेगी. इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशनल एटोनमी के इश्यूज़ हैं हमारे पास. एंड आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट ब्लास्फेमी लॉज, एंड आई हैव सेड दैट you will be surprised that hardly anyone have ever been convicted. Law is there, hardly anyone has ever been convicted, maybe one odd case. Even the courts do not actually punish them, but people stand incarcerated. They stay in prisons for years and years, and there are not people out there to come and say कि भाई इनको आप रिलीफ दें. जैसे कि अभी केस आपने देखा है कि आप रिलीफ दें. अगर कोई शख्स क्रिमिनल है, उसने बुरा काम किया, he should be taken to task, but let there be a due process. Let everyone know that this has happened. I have also spoken about let us learn from the debacles, lessons learned. Are we learning from taking lessons from what went wrong? Accident क्यों हुआ तो और आइंदा मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, खाना सही नहीं बना तो आइंदा खाना कैसे बनाऊंगा, मैंने ये काम किया था किसी महकमे में, अब ये मैं काम डिफरेंट तरीके से करूंगा. सोल सर्चिंग की मैंने बात की. Then trust is the essence of good governance. I have also spoken about, and I would quote again over here, a good quote, and I like that too. पेज 192 पे मैंने लिखा है, हज़रत अली का कॉल है, वर्स्ट ऑफ आवर फॉल्ट इज़ इन आवर इंटरेस्ट इन अदर्स पीपल फॉल्ट. हमारे वक्त दूसरों की गलतियों में देखते रहते हैं. Trust is the essence of good governance, and we must all keep that in mind. And again, as I move ahead, I have spoken about human trafficking, money laundering, unplanned migration. जब मैंने unplanned migration में बात करनी शुरू की तो on a lighter note, I was amazed to see that who are the people who actually migrate. Internal displacement या internally लोग क्यों एक दूसरे शहर से जाते हैं. And I was surprised to see that 66% of the married girls actually migrate from their town and go to other cities. कुछ हैं जो कि
शौहरों को भी ले आती हैं अपने शहरों में, लेकिन ज़्यादातर जो है शादी के बाद लोग डिस्प्लेस होते हैं एंड दे गो अवे, they go to new places. I have also spoken about the ravish crime, women rights and human trafficking, and then I have lastly spoken about the extrajudicial measures and extrajudicial crime which we commit. मैं जब पुलिस वालों से बात करता हूँ, लॉ इन्फोर्सर से बात करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप ड्यू प्रोसेस शो करेंगे, आप क्राइम ख़त्म करने में कामयाब होंगे, क्राइम ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये जो शॉर्टकट्स है ना कि आपने पकड़ के बंदा मार दिया और उस जिसने मारा उससे पूछा नहीं जा रहा, आपने इससे पुलिस की मिलिट्राइजेशन की है, आपने पुलिस के जो मार्टर्स हैं या लॉ इन्फोर्सर्स के मार्टर्स की तादाद बढ़ा दी। अब पुलिस वाला किसी को पकड़ने जाता है और वो डाकू हो, उसको पहले जहन में आता है मुझे मार देगा पकड़ के, तो वो पहले पुलिस वालों को मार देता है। अगर पुलिस डाकू को ये पता हो कि ड्यू प्रोसेस का एक है सिलसिला, वो शायद उससे सिलेंडर करे और ना लड़े और अदालत से बेल लेने की कोशिश करे या कुछ करे। सो वी हैव लॉस्ट सम वेरी गुड ऑफिसर्स बिकॉज ऑफ दैट, एंड आई कीप सेइंग डोंट डू इट। एक्स्ट्रा जुडिशियल killing is a crime, and like Nietzsche says, while fighting a crime, don't become a criminal. So this is what we are trying to do. अगर आज आप किसी लॉ इन्फोर्सर को ये इजाज़त दे रहे हैं कि मारना जायज़ है, कल वो अपने लिए मारेगा, लोगों के लिए मारेगा, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन कराची, कि हैपेंड इन पंजाब सेक्टेरियन और टेररिज्म के केस में, जहाँ दो शायद सही बंदे मार दिए जो उनको नहीं मारना चाहिए थे फिर भी, लेकिन बहुत से उनने सिविल डिस्प्यूट्स के मामले में लोगों को मार दिया, लेन देन में मार दिया, दुश्मनी में मार दिया। So when you make them trigger happy, they are ready to do anything. Extrajudicial measures is a crime, and the more we realize it, the better. We have to make the law enforcers and the justice sector understand that by enforcing law, rules, regulations, you have to show a due process. अगर एक घर में किसी बच्चे ने बुरा काम किया और उसको मार दें, पूरा ख़ानदान आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा। एक शख्स के ख़ानदान में किसी बच्चे ने बुरा काम किया और आप उसको बुला के ड्यू प्रोसेस से सज़ा दिलाते हैं, तो पूरा ख़ानदान उसको भी कंडेम करता है कि हाँ यार वाकई में ऐसा किया था, और लोगों को बुरा काम नहीं करना चाहिए। लाल बत्ती पे रुकना है, हरी बत्ती पे जाना है। अगर आप ये कहते हैं कि ये 10 लोग लाल बत्ती पे नहीं रुकेंगे और बाकी रुकेंगे, तो आप नहीं इन्फोर्स कर सकते। सो अगेन आई कंक्लूड विद दिस, एंड आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट स्टेटमेंट्स विच कॉस्ट नेशन हैवीली। हम जो है बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते हैं, लाइक द स्टेटमेंट के PIA में सारे जारी पायलट हैं, तो उसके बाद हम आज तक इसी चक्रों में कि यूरोप में हमारा एयरलाइन चला जाए। इफ़ देयर वे सम स्लैकनेस, तो आप बुला के उनको सज़ा दे देते, कुछ कर देते। लेकिन मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट्स एंड मेनी अदर सिमिलर स्टेटमेंट्स which actually costs us very heavily. And lastly, like I talk about the extrajudicials, I also talk about the ATA cases. मैं कई जगह बाहर गया यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने कहा आपने टेररिज्म बहुत है। हमने कहा हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं है, हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, और ये सारा जो कुछ है ये अफगान वॉर इसके रिजल्ट में। उन्होंने लिस्ट दी मुझे कि आपके इतने केसेस ATA के रजिस्टर हुए हैं, आप खुद दहशतगर्दी के पर्चे रजिस्टर कर रहे हैं। सो व्हेन यू डू दैट, पीपल विल से कि दहशतगर्दी हो रही। सो पीनल कोड में भी इतने, जिससे आपके यहाँ प्यूनिटिव सेक्शंस हैं, जिस ऑन बेसिस ऑफ विच यू कैन एक्चुअली होल्ड पीपल अकाउंटेबल। हम पिछले 10-15 सालों से ही देख रहे हैं कि हम कभी वकला गर्दी, मीडिया गर्दी, पुलिस गर्दी, किसी के नाम पे भी हम बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाते हैं। सो आई बिलीव दैट सिवेरिटी इन लॉ इज़ नॉट गोइंग टू रिजॉल्व, इट्स एक्चुअली द सर्टेनिटी इन लॉज विच इज़ गोइंग टू रिजॉल्व द इशू। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट सॉल्विंग अ केस इज़ वन थिंग एंड प्रूविंग अ केस इन अ कोर्ट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। और हमें ये सब छोटी छोटी बातें मालूम है, एंड देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। बट आई विल जस्ट स्टॉप ओवर हियर एंड टेक क्वेश्चंस। आई हैव ऑल्सो हैव उर्दू बुक, एंड मैं आखिर में कोकर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटा सा उसमें कोई बात सुना दें, इनकी बड़ी अच्छी आवाज़ है। सो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू कन्वे। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Imam, for sharing your insights and thoughts and experiences with us. This session is being live streamed and can be accessed later on as well at IPRI's YouTube channel. Now the floor is open for question and answers, and I would request the audience members to please introduce yourself and keep your questions brief so we can accommodate maximum number of questions. Yes, sir, please. Yeah, there will be a mic, sir. Please. I'm Nadir Mumtaz.
So I just read the title on the cover page, which says, "In Pursuit of an Ethical State." So the emphasis is on the word pursuit. The implication or the connotation of this title is that we are not an ethical state at present. So are you by implication condemning the present system, the police service and the foreign service, two institutions you referred to? Thank you. Sir, whatever you wish, it's up to you. Yeah, it's your. So we will have two more questions, and then we will have the question and answer session in rounds. So the first round we have one question, and is somebody else? Do we see a raising hand? Yeah. So Dr. Janjua has a question. Simple question. What's the role of criminal justice system? Because we oft read that modification in criminal justice system is essential for policing to succeed. Sir, if I may, I have a question. I have two questions rather. The first is, what was your motivation for joining the services? And the second one, you have been in the narcotics department as well. So, जो हमारी universities में आजकल हो रहा है, the drug culture that's been prominent in our universities. So, have you ever been done about anything about it? Or thank you so much for that. Thank you very much. I'll start with your questions. I believe that motivation keeps us alive. And all of us, when we joined civil services, we had motivation and we had aspirations. And there was a lot of idealism in all of us. हम समझते थे कि हम जाके बहुत सी चीज़ों को अचीव कर लेंगे. हम में से बहुत से लोगों ने किया भी. पर्सनली तो बहुत ज़्यादा किया और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी किया होगा. कितना किया, अगेन दैट्स अ क्वेश्चन. The second part is that we must keep our aspirations alive. Even now, I won't tell you my age, but you know I'm retired, you can guess. You must keep your aspirations alive. There's so much to do and so much is going to happen in life. So let's not get away from that. जो जिस जज्बे के साथ आप नौकरी में आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम करना शुरू कर रहे हैं, वो जज्बा नहीं ख़त्म होना चाहिए. And if you can keep that alive, you will be hale-hearty and you will be running on the road. My motivation is like it gives me a kick. जब जिस दिन अखबार में आर्टिकल छपता है बड़ा मज़ा आता है और चार लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो चार लोग तारीफ़ भी करते हैं. फिर पता चलता है कि यार आप अच्छा ये आपने बात कही. और जो दूसरी एक और चीज़ होती है कि आपको पता चलता है यार ये मैं चीज़ इस तरह भी कह सकता था. अच्छा मैं तो इसको इस तरह सोच रहा था यार ये तो राइटिंग में इस तरह आ रही है. सो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं. So it gives you a kick, it keeps you happy, it keeps you busy, and it keeps you glued to your study room also, make you read, make you able to talk. And one of the motivation now I think is to groom, to talk, and still de-learn and relearn if I can. I would like to do that. So my motivation actually is that कि मुझे मज़ा आता है और मेरे ख्याल से जिस चीज़ में मज़ा आता है वो करना चाहिए. Narcotics में General Anik is doing a great job in ANF, and ANF is doing a wonderful job. And so are many law enforcers. और बिल्कुल narcotics is a big challenge. Again, like terrorism, we are victim of what is happening across border. और हमारे दूसरी तरफ 90% of the opium दुनिया की grow करती है और वो यहाँ से कहीं दाएं बाएं जाती थी लेकिन subsequently वो यहाँ यूजेज होनी शुरू हो गई. And that has become a big problem for us. और अब तो नए जिसे आप कहना आइस और एस्टेसी और इस किस्म की भी ड्रग्स आ गई हैं. लेकिन as far as universities is concerned, I teach at Kairazam University and Islamic University, and I keep telling them, once you find out that a student has got addicted, you cannot actually rusticate him. The simple formula for universities is they rusticate them. How can you throw away someone if he has indulged in some bad habit? You're actually supposed to help him to come back, give him a therapy and counseling. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का ये मिजाज हो गया कि ये नशा कर रहा है इसको निकाल दो, और जो पेरेंट्स हैं उनका ये कि हमारे बच्चा नशे में नहीं पड़ेगा, इस नशे याफ्ते बच्चे को निकाल दो. भाई वो जाके कहीं स्कूल कॉलेज में जाएगा और वो वहाँ ये काम करना शुरू कर देगा. आपकी तो कोशिश ही होनी चाहिए कि वो ये काम ना करे. दैट इज़ व्हाट वी शुड ट्राई टू डू.
सर ने बात की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, मैंने तो आपको 3 कंपैरिजन दिए कि प्रिजन्स, कोर्ट्स और लॉ एंड फोर्सेस के क्या हाल है। हम 2 और कंपोनेंट्स को मिस कर गए। जो पहला था वो कम्युनिटी का था कि कम्युनिटी कितनी लॉ अबाइडिंग है, कम्युनिटी में कितने ऐसे एमनिटीज़ और फैसिलिटीज़ चल रही हैं जिसकी वजह से लोग क्राइम नहीं करते, और क्या उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है कि नहीं है। जब लंदन पुलिस चीफ से किसी ने पूछा, मैंने ये बात पहले भी की थी, और उन्होंने कहा कि बड़ा क्राइम हो रहा है लंदन में, तो उसने उल्टा ये कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं बात, आप लोग हैं जो क्राइम करते हैं, यू आर कमिटिंग क्राइम, आई एम मेयरली रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट इज़ हैपनिंग। और फ़लसफ़ा यही कि आग जो है वो फायर ब्रिगेड की वजह से नहीं हो रही, वो बीमारी डॉक्टर की वजह से नहीं हो रही, क्राइम पुलिस की वजह से नहीं हो रहा। ये जितना हम जल्दी समझ लें तो उतना ही अच्छा है। क्राइम के अलग फैक्टर्स हैं, और आप कह सकते हैं कि पाई चार्ट में पुलिस का भी एक रोल होगा, रिस्पॉन्स का, एफिशिएंसी का, प्रोफेशनलिज्म का, प्रिवेंशन का, प्रीएम्प्टिव एक्शंस का हो सकता है। लेकिन एक्चुअली क्राइम तो किसी और वजूहत की वजह से हो रहा है, दहशतगर्दी किसी और वजूहत की वजह से फैल रही है। आप रूट कॉज पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा है कि दहशतगर्द जो है उनसे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट और आर्म फोर्सेस टेक देम हेड ऑन। द क्वेश्चन इज़ कि उसके बाद, उससे पहले क्या हम रूट कॉजेज़ की तरफ जा रहे हैं। नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी कहती है कम्प्रिहेंसिव रिस्पांस प्लान, हमने शायद सुना भी नहीं होगा ये, कि किस तरह आप जो है रिस्पांस करके उस पर कितना काम हुआ है, वो भी एक क्वेश्चन है। सो कम्युनिटी, then of course the law enforcers, then of course the prosecutors. No prosecutor should take a case which cannot be convicted in a court, but somehow they manage to accept a case, and most of them they go and they get a very bad result in the end. So उस prosecutor को भी पकड़ना चाहिए, उस investigator को भी पकड़ना चाहिए। अब तो खैर investigator और prosecutor बहुत सी जगह they work together, but if a case goes for 6 in a court, then something is wrong with investigation, something is wrong with prosecution, and you can also question whether the judges are actually truly trying to find out what has actually happened over here. Nadir साहब का question है, in pursuit, even after doing my masters, I did my LLB, I did my LLM, I did my PhD, so pursuit continues. So we live in a house and we keep on doing renovation. We live in a society, we do renovation. We live in an organization which does renovation. So when I say in pursuit of ethical state, I want the bar to rise. I want the elevation to go up. I'm sure कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने बड़ा काम किया, और मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सौ को इन्होंने काम किया, but we are all trying to raise the bar, and we are all trying to move ahead. We are all trying to struggle. The message of the book is, do we know that state should have an ethics? Do we know the organization needs to have an ethics? And do we still believe that an individual should have an ethics? हम बच्चे को कितना सिखाते हैं सारा दिन घर में, सीधे हाथ से पानी पियो, मेहमानों की इज्जत करो, किस तरह बड़ों से बात करो. Are we teaching this to the state also, to society also, to the organization also? So when we say of pursuit, we are actually saying we want to strive more, we want to raise the bar. I'm not saying saying कि किसी ने अच्छा काम किया, बुरा काम नहीं किया. आखिर किश्ती चल भी तो रही है ना, तो इसका मतलब कोई किश्ती चला रहा है. लेकिन मैं कह रहा हूँ इस किश्ती में बहुत से लोग छेद कर रहे हैं जिस वजह से पानी आ रहा है, और बहुत से लोग उस छेद को बंद भी कर रहे हैं. सो मैं कह रहा हूँ कि परसू करें ना, छेद होने दें, और जो छेद हो गए हैं तो उसको भी बंद करने की कोशिश करें. किसी के लिए खड्डा ना खोदें, खाई ना खोदें, बल्कि कहीं नज़र आ जाए तो उसको भर दें. तो दैट विल बी माई परसूट. जी, रूबीला बंगश, HRTN. कश्ती तो जी मुझे लग रहा है ऑन द लाइटर साइड के हम यहीं चला रहे हैं हमारे मुल्क की, और हमें भी हिदायत वही बख्शेंगे कि हम उसमें खड्डे और छेद ना करें. मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर आपने अपनी बुक में स्टेट लेवल की चीज़ें लिखी और जुडिशरी का और अपने पुलिस के डिपार्टमेंट के मुतालिक बातें होंगी जो मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं उसके मुतालिक नहीं उस तरह से बात कर सकती. लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी है ये कॉम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट के बहुत से कामों को. तो जो पिछला दौर हमने देखा उसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकिंग स्पेसेस का इशू आया और सिविल सोसाइटी के लिए बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना इस वक्त. तो जो आपकी इन परसूट ऑफ एथिकल स्टेट का जो आप विजडम की जो बात आपने की, उसको हम किस हद तक रिलेट कर सकते हैं
सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर कहीं डिटेरियोरेशन हुई है, ये मैं अपने तौर पे बात कर रही हूँ, कि कहीं पर उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कहीं छेद पड़ा है, तो गवर्नमेंट या इस तरह के जो फैक्टर्स थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया। और इस वक्त हमारी जो हालत है उसमें वाकई हमें इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इस पर प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू। सर, माय नेम इज़ शिराज शेख, आई एम अ रिसर्चर हेयर एट IPRI। सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब आप एक एथिक्स की बात करते हैं तो व्हाट लेंस आर यू यूजिंग? इज़ इट अ सब्जेक्टिव एथिक्स और एन ऑब्जेक्टिव एथिक्स इन योर आइज़? दूसरा ये है कि जब हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफाइन कि कौन से एथिक्स जो हैं वो स्टैंडर्ड होंगे फॉर दिस स्टेट, एंड व्हाट वुड बी द इफ़ देयर इज़ डाइवर्स पब्लिक ओपिनियन ऑन दैट, तो आर द सब्जेक्ट्स द वन जो कि डिफाइन करेंगे कि दिस इज़ द एथिक्स वी शुड हैव फॉर द स्टेट, और द वंस दैट आर रूलिंग द स्टेट दैट शुड डिफाइन कि कौन सा एथिक्स हमें यूज़ करना है? थैंक यू सर। From Ishtiaq Ali Mehri. थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस से माजरत चाहूँगा जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द डिवाइड। आपने सिस्टम की बात की, आपने जो है वो फेयर प्ले की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की, वो सब बातें अपनी यहाँ सही हैं। चूँकि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं जिसके ये पूरी कौम जिस सिस्टम की विक्टिम है और जिसके ख़िलाफ़ हम सब कंप्लेन करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप किस हद तक एग्री करेंगे कि हमारी सिविल, मिलिट्री और जुडिशल ब्यूरोक्रेसी जो है वो ख़ुद स्टेट विद इन अ स्टेट है, उसके लिए रूल्स कुछ और होते हैं, और नीचे जो 240 मिलियन अफराद हैं उनके लिए रूल्स अलग होते हैं। इस पर आप रिफ्लेक्ट कीजिए। और चूंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं तो वहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके सिस्टम से एक कराची में इनकाउंटर होता है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, फिर वो रूपोश हो जाता है, पूरी रियासत उसको ढूंढने की कोशिश करती है, वो नहीं मिलता है, लेकिन एक वन फाइन मॉर्निंग वो सुप्रीम कोर्ट में इमर्ज हो जाता है, उसको बेल भी मिल जाती है, और उसके बाद वो फिर दोबारा गायब हो जाता है एक लंबे अरसे के लिए, फिर वो अचानक एक दिन एक्सोनरेट हो जाता है। इस सिस्टम पे आप ज़रूर रिफ्लेक्ट कीजिए जो कि स्टेट विद इन स्टेट का है, जिसकी वजह से हमारी तमाम मसाइल की जड़ है। सो आई वॉन्ट योर एक्सपीरियंस ऑन दिस काउंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट राउंड में से लेते हैं आपको, मैं भूल जाऊंगा अंदर सवाल से। रुबीला, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सिविल सोसाइटी की बात की, स्पेस की बात की। आई थिंक वी ऑल हैव स्पेस एंड वी ऑल्सो डोंट हैव स्पेस. For example, if you can say unpleasant thing in a pleasant manner, it will be acceptable. Secondly, if you are presenting your things in a logical manner, I guess somebody at some end, at some level, at some time is going to accept that. ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आप डंडा लेके खड़े हो जाएं और ज़ोर लगाने की कोशिश करें कि आज ही मैंने फ़ैसला करना है और जहाद पे निकल जाएं या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, दैन उसका कितना फ़ायदा और नुकसान होगा, हिस्ट्री इज़ अ जज ऑफ दैट। आई बिलीव कि सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है, और आई ऑल्सो बिलीव कि बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिविल सोसाइटी या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते। और अगेन सिविल सोसाइटी हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ और बहुत सी जगह बड़ा अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन यू हैव स्पेस, यू कैन ओनली हैव स्पेस अगेन इफ़ यू एनहेंस योर प्रोफेशनलिज्म, इफ़ यू एनहेंस योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। दैट्स इशू। हम पुलिस वालों जब बात करते हैं ना, हमारे यहाँ एक सवाल आता है कि इमेज बिल्डिंग करें, पुलिस वालों का बहुत बड़ा सवाल आता है, और इसके लिए पुलिस अवाम साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों का हम जिक्र कर रहे होते हैं उसमें। मैं कहता हूँ ज़रूर करें, लेकिन आपका एक्चुअली जो आपकी इमेज बिल्डिंग है वो आपकी परफॉर्मेंस है। अगर बाबर आजम रन बना रहा है तो उसको कोई इमेज बिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थाने में पर्चे हो रहे हैं, पुलिस बर वक्त पहुँच रही है, जुडिशरी काम कर रही है, तो आपको इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। होता है कि कोई एक वाक़या हो जाता है और उस वाक़या को लेकर हम बैठ जाते हैं और अपने 9 कामों को छुपाने की कोशिश करते हैं, या उन 9 कामों की इस्लाह भी करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो या हमारी कोई शहादत हो जाती है लॉ एंड फोर्सेस से किसी में, अभी वी ऑनर हिम, बस सवाल ये कि हमें पूछना चाहिए कि हुई क्यों, ऐसी क्या गलती हुई, और हम आइंदा कैसे रोक सकते हैं। किसी की जान गई है, उसको ज़रूर कॉम्पेंसेट करें और उसको ऑनर करें, लेकिन अगेन नेक्स्ट लाइफ शुड नॉट गो। और फिर अपने ऑपरेशनल प्रोसेस को देखें आप कि क्या वो दुरुस्त है कि नहीं। शिराज साहब ने बात की जी कि नाउ अगेन एथिक्स, वी नो कि एथिक्स इज़ अबाउट राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट नॉट टू बी। अगेन इस पे इतने थिंकर्स हैं, इतनी राइटिंग्स हैं, लेकिन डीप इन आवर हार्ट देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्टैंडर्ड, एंड देयर इज़ अ स्टैंडर्ड विच वी बिलीव कि ये सही है। और वो गालिबन आप देख सकें अगेन एपिस्टिमोलॉजी के थ्रू, आप देखें सोर्सेज ऑफ नॉलेज के थ्रू,
और आप ये देखें कि which is a correct ethical path actually. Maybe the faith is telling you many things, and they have some very prudent things to tell you. Maybe reasons, maybe experience, and maybe through the scientific pragmatic methods you can find out what things are ethical. So when we talk about ethics, हम सबको पता है ना झूठ बोलना बुरी बात है, हम सबको पता है कि कूड़ा फेंकना बुरी बात है, हम सबको पता है कि हमें टाइम पे जाना चाहिए, हम सबको पता चाहिए कि मातहत के साथ अच्छी तरह बात करें. हम जो दफ्तर में बहुत सारे जाते हैं, हम घर ही नहीं जाते, हम समझते हैं कि देयर इज़ नो अनदर डे. सो हम सबको अपने स्टैंडर्ड्स मालूम है. हाँ, एथिकल डायलेमास किस वक्त आते हैं, जबकि उसकी दो बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एग्जिस्ट कर रही हैं. फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट जो है वो इज़ ऑन बेड डाइंग एंड ही आस्क्स अ डॉक्टर कि क्या मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा. सो व्हाट विल बी एन एथिकल आंसर ऑफ अ डॉक्टर. डॉक्टर कहते भाई तुम तो फारिग हो, तुम तो नहीं बचते, तो वो तो मौत से पहले मर जाएगा. लेकिन अगर डॉक्टर झूठ बोलता है, कहते नहीं नहीं क्यों नहीं ठीक होगा, अल्लाह पे यकीन रखो, दवाई पे यकीन करो, इंशाल्लाह तुम ठीक होगे. व्हाट शुड दैट डॉक्टर डू. सो दैट कैन बी एन एथिकल डायलेमा. लेकिन बेसिकली एट मेनी लेवल्स यू नो what is to be chosen and which are correct path and which can be done. अब तो इतने मॉडल्स मौजूद हैं, चाहे GPT कर दें वो भी बता देगा आपको 10 मॉडल्स एथिक्स के कि क्या हैं, और दुनिया उसको फॉलो कर रही है. और अच्छा, देन अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इट, वी कांट से वी कैन गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स. एटलीस्ट ट्राई टू गेट 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 60 मार्क्स, बट मेंटेन अ स्टैंडर्ड ना, मेंटेन अ रेड लाइन के यार इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा. सो आई थिंक दैट कैन हेल्प एक्चुअली. और फिर ये आपने सवाल किया कि कैसे डिफ़ाइन करेंगे, स्टेट डिफ़ाइन करेगा, लोग डिसाइड करेंगे, सिविल सोसाइटी करेगी, कौन करेगा. आई थिंक यू कैन एक्चुअली सिंथेसाइज. You know the pulse, you know the voices, you know what people are expecting. You can actually synergize that, and that could probably be a better part. Like क्या है वो greatest happiness for the greatest number, okay, उसका हम कर सकते हैं, hedonism को देख सकते हैं उस हवाले से. So that can, but you have to see the majority in that way. इश्तियाक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और लोग मुझसे भी बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद. मैं लिखता हूँ अब आपने सर्विस में क्या किया, और अब आप बड़ी बातें कर रहे हैं बहुत से हम लोग. लेकिन हम वो बहुत से लोग हैं जो हमने सर्विस में भी ऐसे ही काम किया. 19-20 शायद हमने कर लिया हो, लेकिन 18-20 हमने कभी नहीं किया. वी वुड स्टैंड अप एंड से कि ये नहीं हो सकता. शी इंट्रोड्यूस मी दैट आई हैव सर्व ट्वाइस इन मोटरवे, विच मीन्स कि ज़्यादातर मुझे सड़क पे ही रखा है इन्होंने, ठीक है. सो द पॉइंट इज़ कि हमने कोशिश की, और कोशिश करनी चाहिए. ट्राई टू प्ले द बॉल अकॉर्डिंग टू इट्स मेरिट. हमने कोशिश की, और यहाँ इतने सारे मेरे रोल मॉडल्स हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, कि जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया. दे हैव स्ट्रगल्ड, बट यू डोंट एक्सपेक्ट कि कोई हरकुलिस बन जाए, टार्ज़न बन जाए. लेकिन आप बोलें तो सही ना, इसीलिए तो किश्ती चल रही है. मैंने कहा इतने अच्छे अच्छे लोग हैं और वो काम कर रहे हैं. और वेदर देयर इज़ अ स्टेट विद इन स्टेट, वेदर देयर इज़ अ डीप स्टेट, whether there's a bunch of people who make a decisions in bureaucracy or any other organizations, but out there are people who are watching them, and they all want to see transparency, they all want to see. जहाँ तक आपने बात की, again extrajudicial killing is a crime, and the person or this person you are talking about, or any other person who you are talking about, it's for leadership to stand up and not let them perpetuate and prosper, and sort them out no matter at what cost. And if you don't do, it's going to come to you. ये जितने लोगों की आप बात कर रहे हैं, मैंने इन बहुत से लोगों से बात की है. And when you talk to them in isolation, they might even start crying in front of you, and they would say कि मुझे तो इस्तेमाल किया गया है. हम कह सकते हैं आप क्यों इस्तेमाल हुए, आप अपनी मर्जी पे थे, आपने अपना डिसीजन लिया. आप जानते नहीं कितना प्रेशर होता है. मुझे कहते थे ये काम करो, मैंने तो एक काम किया, दूसरा काम किया, मैं आदी हो गया फिर इसका. और अब देखें जी, ये आखिरी काम पे मुझे फंसा दिया आपने. इसमें ठीक है मेरी गलती होगी थोड़ी सी, बाकी भी तो मैंने काम किए ना आपके लिए. वो भी रो रहा होता है. ही ऑल्सो डीप इन उसका कॉन्शियस जो है उसको हॉन्ट कर रहा होता है. ये जितने लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं ना, पुलिस ऑफिसर्स या लॉ एनफोर्सर्स जो भी, लाइफ विल हॉन्ट देम एट द एंड ऑफ द डे. आई टेल यू, दे आर गोइंग टू हैव बैड ड्रीम्स, दे आर नॉट गोइंग टू हैव गुड टाइम्स अहेड. ये वक्ती तौर की बात होती है. और क्यों किसी के कहने पे ये काम कर रहे हैं, वो भी चला जाएगा, आप भी चले जाएंगे. छोटा सा तो एक वक्त होता है. लेकिन द क्वेश्चन इज के कैन यू स्टैंड बाय, कैन यू से. देयर आर मेनी पीपल हु सेड नो इन देयर लाइफ, मेनी पीपल हु से वी विल जस्ट वॉक अवे, एंड दे हैव वॉकड अवे. और कुछ नहीं हुआ. जिन्होंने 21 बुरे काम किए, वो 22वें बुरे काम पे फारिग थे.
जिन्होंने दो बुरे काम मना कर दिए या एक बुरा काम नहीं किया, वो भी फारिग हो गए। इन द एंड दे ऑल गो, ठीक है ना, दे ऑल पेरिश इन द एंड। सो सवाल ये कि आप 20 काम बुरा करने के बाद जाना चाहते हैं या आप शुरू में ही मना कर दें। हाँ, सिस्टमेटिकली चीज़ें विल गेट बेटर if one say no and the second say no and the third say no and the fourth say no, and things will start moving on. But when one say no, the 10 who say more than yes, so that's a big challenge. हमें लगाएं आप, हम बताएंगे आपको, and we know that this man will go there, will not win a match for you, तो 20 ओवर ज़ाया ही करके आएगा, टाइम ज़ाया करके आएगा, लोगों को नुकसान होगा। But then people look for loyalists, people are not looking for professionals. जब हम क्रिकेट टीम बनाते हैं, we're looking for बाबर आजम, we are looking for Messi and Ronaldo. That's what we should be looking for in the institutions to stop its erosion. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नजमुस साकिब है और मेरा तारुफ ये है कि मैं डॉक्टर कलीम का रेगुलर रीडर हूँ और इनके अक्सर जो आर्टिकल्स हैं वो मैंने पढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो इतना खूबसूरत नाम रखने का, इन परसूट ऑफ एन एथिकल स्टेट, रिफ्लेक्शंस ऑफ अ पुलिस चीफ, इसकी मुबारक हो। आपको अपनी किताब की मुबारक हो और हम आपको अभी बहुत और ज़्यादा लिखता हुआ देखना चाहते हैं। As far as your career is concerned and your performance is concerned, it reminds me of आपने क्रिकेट की बात की ना, तो यूनुस खान ने 3 सेंचुरी की, तो एक रिपोर्टर ने कहा जी कि आप क्या अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कहेंगे कुछ, तो उसने कहा कि मेरा बैट बोलता है। So your career is in front of us. As friends, as colleagues, we know that what kind of accomplishments you have achieved in all your very bright career. तो उसकी सबकी आपको मुबारकबाद के बाद मेरे 2 बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं जी आप रिटायर हो गए हैं और आप यानी आईजी रिटायर हुए और 60 साल के हुए, लगते आप मुझे एएसपी हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि राज क्या है इसका। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सीरियस कि मुझे ये किताब मिल कब रही है। थैंक यू सो मच। Sir, Assalamu alaikum. My name is Fazan Riaz and I'm a researcher over here in IPRI. Sir, my question is regarding the blasphemy laws that you also highlighted in your talk. So this issue has, again, very much, unfortunately, very much momentum over the years. But I want to seek a more elaborative reflection from your side that when police reaches at an incident which is about to happen and the public is fully, charged to mob lynch a person on accusations of blasphemy, how police can effectively intervene in order to de-escalate the situation and save the culprit, like we have seen recently in the case of ASP Sherbano, that she successfully did so. But in majority of the cases, this doesn't happen. So kindly reflect on that. Thank you. I think, sir, that would be the last question. Yeah, Thank you. So Saddam, as far as blasphemy is concerned, देखें all over the world, many states have laws which relates to blasphemy. आप किसी की तौहीन बेइज्जती नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, और बहुत सी जगह ये कानून है और हमारे मुल्क में भी है। सवाल ये कि उसको आप हाउ डू यू अप्लाई इट। व्हेन समवन इज़ accused of blasphemy, you have to investigate, you have to inquire, you have to have proper evidence to prosecute against it. And it is a responsibility of state who has been given the power under social contract to actually respond. That is what the crux is. लेकिन लोग विजिलेंटी जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि आपने ओवर द ईयर्स एक आपने माहौल बनाया कि शायद अदालतों से इंसाफ नहीं मिलना, या शायद ये बहुत बड़ा जुल्म है और आज ही फैसला हो जाए इसका, हम 5 साल बाद क्यों इसकी इंतज़ार करें। उसके रिज़ल्ट में 100 से ज़्यादा लिंचिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में और किसी को पता ही नहीं कि वजूहत क्या थी। लोग बोलते नहीं, बात नहीं करते।
आज भी बहुत से लोग इनकासिरेटेड हैं, दे स्टिल इन प्रिजन्स एंड पीपल वुड नॉट टॉक अबाउट देम कि उनको बाहर निकाल लें। भाई अगर उन्होंने बुरा काम किया तो आप ज़रूर पूछें, गवाही लाएं, सारा कुछ करें, लेकिन आप वैसे किसी को नहीं आप कर सकते, विच इज़ रॉन्ग। और दूसरा आपने जहाँ तक बात की कि देखिए पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी पुलिसिंग एंड पुलिसिंग पुलिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट कम्युनिटी डज। वी एक्चुअली ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट कम्युनिटी एक्चुअली डज। हम सब की जितनी इंडिविजुअल आदतें हैं, ऐसे माशरे की आदतें हैं, इंसान की अच्छी बुरी आदतें हो सकती हैं, माशरे की अच्छी बुरी आदतें हो सकती हैं। तो ये जो पूरा माशरा है उसकी भी एक आदत है। अब आपने ओवर द ईयर्स जिस तरह भी एक नैरेटिव बिल्ड किया है तो उस पे दे लिव इन दैट, एंड दिस इज़ द नैरेटिव विच हैज़ बीन बिल्ड इन 80s and probably in 50s and maybe centuries ago also, and on many lower scale, but now it has risen to many level. ऐसे लिंचिंग के केसेस दुनिया में कहाँ होते हैं, और ऐसे लिंचिंग की केसेस में हमारे यहाँ भी एक ख़ास रीजन में हो रहे हैं। आपको शायद बलूचिस्तान में उस तरह लिंचिंग के केस नज़र ना आए और शायद केपी में भी नज़र ना आए। तो इस तरह ये ख़ास जगह हो रहे हैं, एक ख़ास माइंडसेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ आपको अवेयरनेस बढ़ा दी है, उनको मेन स्ट्रीम करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनकी लीडरशिप को इंक्लूसिविटी में लाएं, उनको शामिल करें। सो देयर आर मेनी थिंग्स यू नीड टू डू। सो व्हेन पुलिस रीचेज एट सच अ पोजीशन देयर इज अ चार्ज मॉब, दे ऑल्सो आर अफ्रेड दैट दे कुड बी लिंच्ड, तो वो भी डर रहे होते हैं, वो भी अपनी जान। फिर दूसरा जो उस वक्त नारे लग रहे होते हैं वो उसको बड़ा बिलीव करते हैं, और उस नारे के ख़िलाफ़ जाना उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। वो इस नारे को जिसको खुद बिलीव करते हैं और उस वक्त कोई नारा लगा रहा है, जबकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नारा होता है उस वक्त और वो वाक़या नहीं हुआ हुआ होता, तो वो भी उसकी उसमें होते हैं कि हाँ यार इसने ये शायद किया है तो यही शायद इसका अंजाम होना है। तो लेकिन दे हैव बीन मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पुलिस वालों ने बचाया है, बट दे हैव ऑल्सो बीन इंसिडेंट विद दे हैड टू कट अ वेरी सॉरी फिगर। जड़ावाला का केस है और इस तरह के आप बहुत सारे केसेस देख सकते हैं। बट इज़ अ चार्ज मॉब, बट यू हैव टू सी द अर्ली वार्निंग इन सोसाइटी। आप मज़हब पे कितनी गुफ्तगू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू हैव सेड, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट क्राइम राइजेज इन रमज़ान। Robbery, theft, eve teasing, this sort of adulteration, they all rise. Smuggling, holding, it all goes up in Ramzan, in a month where everyone is जैसे कहना spraying and इबादत कर रहे हैं। उस वक्त ये होता है। शाम को मगरिब के करीब सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स का वो जो स्पैन है 1 घंटे का, कि मकरू ना हो जाए, और उस चक्रों में बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। सो द क्राइम राइजेस। सो हाउ मच ऑल दिस प्रैक्टिसेस एक्चुअली इट शुड अफेक्ट एंड इट डज अफेक्ट इन मेनी वे, बट देन यू हैव टू सी द नैरेटिव एंड पैराडाइम। सर ने बात की, सर आई एम नॉट रिटायर्ड इन दैट वे, आई एम रीटायर्ड, RETYRED, नए पही हैं मेरे सर। और राज कोई नहीं सर, आई थिंक आई ब्रॉड, I have a good luck. I have been getting away. People have been forgiving me for my mistakes and my omissions. Somehow I got away. लेकिन one thing I would say कि मेरे ख्याल से जो अगर कोई जिसे आप समझें ना कि सेंस ऑफ accomplishment है, या आप समझते हैं कि कामयाबी का कोई बन सकता है या ज़रिया, या जिसकी वजह से खुशी या ताकत मिलती है, वो है इनकसारी। मैं समझता हूँ द मोर हम्बल यू आर, बी वॉट यू आर, दैट इज़ वॉट एक्चुअली पेज। मैंने 34 साल पुलिस में नौकरी की है, मैंने कभी गालियाँ नहीं दी, मैंने कभी किसी को ये भी नहीं कहा तुम गधे हो, बंदर हो, उल्लू हो, मैंने कभी ये भी नहीं कहा। हाँ, हमने लोगों को डिसमिस किया है, हमने सज़ाएँ दी हैं, हमने इनकाउंटर्स किए हैं, लोग हमसे मारे भी गए हैं जेन्युइन इनकाउंटर्स में। हम खुद भी हमने कई दफ़ा कलमा पढ़ा, हम समझिए आखिरी दिन था हमारा, हमने पढ़ा। लेकिन ये कि आई बिलीव के यू हैव टू बी हम्बल एट द एंड। आप खामा का बदतमीज़ी ना करें। वो कहते हैं ना बहुत गुस्से वाला है, मातहत को देख के तो गुस्सा ही आ जाता है, नज़र आना चाहिए कोई जिस पे ज़ोर चढ़ जाए। तो ये एक बड़ा मिजाज है। तो आई थिंक दैट पेड ऑफ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आई देखें फ़ोन तो बचता नहीं है मेरा अब भी। तो आपने अच्छा किया या जो किया, यू विल गेट व्हाट यू आर बेसिकली। बट आई एम कंटेंटेड कि एटलीस्ट आई कैन से आई हैव लेसर स्केलेटन्स, दैट प्रॉब्ली मेक्स मी हैप्पी। एंड आई राइट एंड आई स्पीक एंड आई गो एंड टॉक। आई हैव सम वंडरफुल फ्रेंड्स जी, जो एक टेक्स्ट पे आ जाते हैं, आप आ गए सर, आपसे हमने इतना सीखा है। और मसूद साहब बैठे हैं, असद साहब बैठे हैं, आई कैन नेम सो मेनी पीपल ओवर हियर, ठीक है, जो कि मेरे आर्टिकल की बहुत सारी बातें जो मैं लिख रहा होता हूँ वो बेसिकली मैंने आप लोगों से कहीं से ट्रिगर होकर लिख रहा होता हूँ उसको। इट हैज़ टू ट्रिगर यू बेसिकली, जिस तरह आप भी लिखते हैं कि समथिंग हैज़ टू ट्रिगर यू एंड देन यू आर एबल टू राइट एंड एक्चुअली एक्सप्रेस इट। So I think one of the way forward for youngsters to carry on is try to get best in what you are doing,
ट्राई टू गेट एक्सेल, यानी जब उस महकमे का या उस खेल का जिक्र है तो मेसी, आपको लोग मेसी के नाम से याद करें, वो दूसरा वाला मेसी नहीं, एक्चुअल मेसी, ठीक है ना, और रोनाल्डो के नाम से लोग आपको याद करें, तो यू शुड बी दैट मैन जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात आए, एंड देन यू विल रिमेंबर्ड. बट अगेन you need to understand you are human. And lastly, you know, just to say very quickly, you remember Marcus Aurelius, the Roman emperor, जिसने बड़ा काम किया, one of the last. तो उस वो भी जब जाता था लोग उसकी बड़ी तारीफ़ें करते थे, ये तुमसे अच्छे आदमी नहीं हो मार्कस, तुम बहुत शानदार हो, तुमने कपड़े कितने अच्छे पहने, बोलते कितने अच्छे हो, और क्या बात है तुम्हारी, कभी ऐसा काम नहीं हुआ. लेकिन उसने एक बंदा अपने साथ रखा हुआ था जो उसके कान में कहता था, मार्कस तुम सिर्फ एक इंसान हो, let them say what they are saying, you're just a human and tomorrow you will be gone. तो इनकी बातों में नहीं आना आपने. So I think a way forward is that you remember you are human, try to contribute, try to say unpleasant thing in a pleasant manner, and try to reason out, try to speak out, try to convey your message, and also try to relearn and relearn. If you believe कि जो आप समझ रहे हैं कि होता आप मैं ना सही समझ रहा हूँ, तो नई तरीके से कह लें. आप इजाज़त देंगे तो एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ेंगे आखिर में, इट विल जस्ट टेक 3 मिनट्स. किताब सर अभी बाहर से आपको मिलेगी सर, ये किताब सर. क्या आप समझते हैं कि पुलिस को लोकल गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए ताकि कम्युनिटी पुलिसिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो, और ये प्रोविंशियल टायर जो है ऑफिस इससे बाहर आ सके? देखें, पुलिस के 2-3 निज़ाम चल रहे हैं पूरी दुनिया में. वन ऑफ द सिस्टम इज़ अ नेशनल पुलिस, लाइक बांग्लादेश, नेपाल, लाइबेरिया, मेनी प्लेसेस, यू नो, वे दे हैव जस्ट वन पुलिस चीफ, एक आईजी होता है. बाकी जिस तरह फ़ौज का सिस्टम है, यूनिटी ऑफ कमांड है. दूसरी जगह पुलिस जो है वो डिसेंट्रलाइज पुलिसिंग है, तो आपके छोटे छोटे शेरिफ्स होते हैं, छोटी छोटी प्रोविंशियल पुलिसिंग होती है. हमारे पाकिस्तान में पुलिस के 15 इदारे हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया 5.5 लाख के करीब तादाद है. तो 15 ऑर्गेनाइजेशन, 4 सूबे हो गए, इस्लामाबाद, AJK, GB, FIA, IB, रेलवे, इस तरह मिला के 15 हमारे हो जाते हैं. पुलिस को मेयर के और या लोकल बॉडीज़ के अंदर बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन किस तरह होना चाहिए, मातहत के तौर पे नहीं कोई होता, उन्होंने अपना काम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस जब चीफ एग्जेक्टिव बुलाता है मुल्क का या सूबे का या लोकल गवर्नमेंट का, वो पुलिस से पूछेगा यार मुझे बताओ कि क्राइम क्यों राइज कर रहा है, तो ही शुड टेल द स्ट्रैटेजी, ही शुड टेल कि मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ही शुड गिव अप हिज प्लान. चीफ एग्जेक्टिव क्या है कि ये नहीं कह सकता कि यहाँ से नाके हटा दो, आज इधर नाके लगा दो, इसको प्रमोट कर दो, इसको वहाँ तैनात कर दो, ये नहीं वो कह सकता. बाबर आजम को आपने कप्तान बनाया है, उसकी मर्जी है जिसको बॉल दे ना दे, पहले पे भेजे, दूसरे पे भेजे, चौथे पे भेजे. आप नहीं कह सकते उसको कि बाबर आजम साहब ऐसा करें कि आप फास्ट बॉलिंग का अटैक शुरू कर दें नई बॉल से, या आप जो है शाहिन अफरीदी से कहें कि आप ओपनिंग शुरू कर दें. सो पुलिस हैव टू हैव एन ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे नीड टू इंश्योर देयर इज नो एक्सटेनियस इंटरफेरेंस, be it mayor, be it the chief minister, be it the prime minister, be it whatever the government is, they are answerable to the government. They are answerable for their performance. They are answerable for what they are doing. But to say कि ये मेरे अंडर है, इसको गिरफ्तार कर लो, इसको छोड़ दो, अब इसको हटा दो. Even senior police officer can't say to a junior police officer इसको छोड़ दो. He can say देखें यार ये मुलव्वस है कि नहीं है, अगर मुलव्वस है तो उसको अंदर करेगा, क्योंकि उसने जाके कोर्ट में खड़ा होना है. That is how system works. So it's okay if it goes under. लेकिन वो समझते हैं आज थानेदार हमारे अंडर आ गया, अब तो मौजे ही मौजे. तो ये अंडरस्टैंडिंग गलत है. We need to understand what are the duties of a citizen and what are his rights, what are his obligations. एक तो ये हमें ज़रूर समझना चाहिए और यह हमें देखना चाहिए. दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट की, तो माशरे ने फ़ैसला किया है ना कि लाल बत्ती पे रुकना है और हरी बत्ती पे जाना है.
माशरे ने फैसला किया कि चोरी जो है बुरी चीज़ है, डाका डालना बुरी चीज़ है, ट्रेस पासिंग बुरी चीज़ है, सो दैट हैज़ बीन डिसाइडेड. नाउ अज्यूम ये किया जाएगा कि 100 में से 3 या 4 ऐसे लोग होंगे जो शायद ये वायलेशंस करें, उसके लिए कानून मौजूद है, उसको आपने अप्लाई करना है. अगेन योर क्वेश्चन कम्स इज लाइक एडिंग अ ह्यूमन एंगल टू लॉ एनफोर्समेंट, एंड विच शुड बी देयर. आपको पता होना चाहिए कि क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, या क्या ये वन टाइम ऑफेंडर है, क्या ये साइकोलॉजिकली बीमार है. 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान में. और एक ये हुआ है कि सुसाइड को इट्स नॉट अ क्राइम एनी मोर, दे टेक हिम एज अ पेशेंट. वरना सुसाइड हमसे सवाल किया जाता था वो कौन सा जुर्म है कि अगर जुर्म ना भी हो तो आपको सज़ा मिलेगी. अटैम्प्ट टू सुसाइड, कि आपने अपने आप को मारने की कोशिश की और आपको उसी पे सज़ा मिलनी शुरू हो जाए. उन्होंने कहा इसने अपने आप को मारने की कोशिश की है तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिम, आप इसका इलाज कराएं. इसी तरह जो एक और तब्दीली शायद आने वाली है, ये बताएंगे एनएफ, कि इवन जो ड्रग यूज़र्स हैं, जो एडिक्ट्स हैं, उनको भी कहते हैं शुड बी ट्रीटेड एज अ पेशेंट, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल. 5 ग्राम किसी ने अगर किसी से आपको चर्च मिल रही है, वो तो एडिक्ट है बेसिकली. यू शुड गेट होल्ड ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली हैविंग 1000 kilograms, who is selling it, suppliers and the people who are transporting it. So yes, there has to be a human angle when you apply law. और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ वेरी क्विकली. जब मैं कोयटा में पोस्टेड था, आई वेंट टू अ पुलिस स्टेशन and I saw a girl of class 9 and a boy of class 9 sitting in police station. Both of them were in uniform. When I went there, I said कि इनको क्यों लाया थाने में? तो SHO said कि they were caught in obscene acts. So I said this is not your job. Immediately हमने उनको छोड़ा और घर छोड़ के आए उनको. हमने कहा ना घर वालों, लड़की के घर वालों को पता चले कि क्या हुआ है, ना लड़के के घर वालों को पता चले कि क्या हुआ है, और समझाया कि यार आइंदा ख्याल करना. हमारा काम था उनको ही समझाना. Exactly the same episode takes place in Islamabad. I went to a police station. Again, I saw some college girl and boy sitting in police station. I immediately said, send them home. This is not our job. What are they doing in police station? Now, when I leave the police station, SHO doesn't obey my order. And he immediately informs the boy family, and he immediately informs the girl family. And next couple of hours, they were firing at the police stations. वो कहते जी लड़की ने ये किया, वो कहते हैं लड़के ने किया, दोनों फैमिली वहाँ लड़ पड़े. So adding a human angle to what you do. For example, in HIV stigma and discrimination, you don't actually tell people that people are ailing from certain disease. You respect them. Most of the HIV disease is because of drug syringes. लेकिन उसको आप जितना मर्जी नाम दे दें, ब्लड ट्रांसफ्यूशन से भी होता है. अब 6 महीने के बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना कि आप कहें जी उसको कंडेम करें या उसको बुरा कहें he has an HIV disease. So yes, you have to have a human angle. And that is why at many stages, even at motorway, वो बाज़ वार्न करके आपको छोड़ देते हैं. शायद जान पहचान की वजह भी छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा छोड़ें, आइंदा तेज़ ना चलाना. या हो सकता है आप किसी सिक पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो आप तेज़ चला रहे थे, तो दे कैन फाइंड. सर Empathy to me, because the lady has asked about the role of empathy in ethics. Empathy makes the process of ethics a little kinder. And this has been one of the questions posed to all the philosophers from Greece to till today, till to me, empathy forms a very important primary constituent of that ethical process which you have been telling about, which you have told us. Without empathy, you can't have any ethics. You need to have I totally agree, sir, kindness and to be generous, to have an human angle to what you do is very important. But again, the people will talk about virtue and people will also talk about criminal virtue. Like Machiavelli will talk about criminal virtue. You want to be nice or you want to be effective? That's a question. State has to be nice or state has to want to be effective, or state wants to be both effective and nice at the same time. Can they do that? एक dilemma है ना प्रिंस में, love or hate. What is to be done? So if you're too soft, maybe people will take you for granted. But you are soft but you are also effective, may probably make a difference. Yes, my good voice and one of the best person, Respected Mr. Mahmood Ali is going to read a passage out of his Mr.
अफसर शाही की अफसरी Kaleem Imam's book. So I would request your attention, please. जस्ट कपल ऑफ मिनट्स मोर, मुझे पता है आप लोगों ने जाना है, लेकिन पुलिस के फंक्शन में आप आ सकते हैं, जाएंगे हमारी मर्जी से। अफसर शाही की अफसरी, नाम लेना मुनासिब नहीं। शायद उन्होंने बचपन में जहाज का सफर तक न किया होगा, बसों और ट्रेनों में आते जाते रहे। किस्मत सियासत में ले आई और सियासत ने वजीर और परवजीर दाखिला बना दिया। जब भी उनकी फ्लाइट होती हुक्म आता, मैं अमूर मुमलिकत में मसरूफ़ हूँ, जब तक ना आ जाऊँ जहाज को रोका जाए। अर्ज़ किया है कि जनाब आली, ये हमारे बस में नहीं। इस पर वो सख्त बरहम हुए। हमेशा आखिर वक्त में आते जब जहाज उड़ने वाला होता, और आखिर एक रोज जहाज उड़ ही गया। थोड़ा रुक जाता तो शायद हम इस डांट से बच जाते जो हमें बाद में सुनने को मिली। सख्त सुस्त कहा गया कि कैसे अफसर हो कि एयरपोर्ट तुम्हारे इलाके में है और एक जहाज को ना रुकवा सके। दबे लफ्जों में कहने की कोशिश की कि हुजूर, गलती आपकी है, मगर उनका गुस्सा और बढ़ गया और हमने चुप रहने में ही आफियत समझी। मेरा गालिब ख्याल है कि वो जानबूझकर लेट आते और इस तरह उनके बचपन की एहसास से महरूमी को तक़वियत मिलती। उन्हीं वजीर मौसूफ के साथ एक दफ़ा फ्रांस जाने का इत्तफाक हुआ। फ्रांसीसी हुकाम के साथ अंट शंट गुफ्तगू करते रहे, ना सर ना पैर। शाम को जब हम लोगों के दरमियान बैठे तो अर्ज़ किया कि जनाब, आप ये क्या फरमा रहे थे? आपकी सब बातें गलत थीं। जब हमें आपकी बात का यकीन नहीं तो दूसरे लोग कैसे यकीन करेंगे? कहने लगे, बस जो मैंने कह दिया वही सही है। तुम लोगों को क्या मालूम कि सियासत क्या होती है और सिफारती गुफ्तगू कैसे की जाती है। बज़ाहिर लगता है कि ब्यूरोक्रेसी की नौकरी बड़े मज़े की है, इसमें कोई शक भी नहीं, और वजह तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें बड़ी टौर भी है। लेकिन अंदर की बात हम जानते हैं कि बाला हुकाम या हुकूमत वक्त की बात ना मानने पर बैकत जुम्बिश, कलम कुर्सी खींच ली जाती है। कोयटा में बड़े साहब के बेटे ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर एक गरीब और मासूम की जान ले ली। गलती भी साहबजादे की थी, लिहाजा गिरफ्तार हो गए। आला हुकाम सख्त बरहम हुए कि तुमने ये क्या किया? हमसे पूछे बगैर इतने बड़े आदमी को, बेटे को गिरफ्तार कर लिया। लाख समझाने की कोशिश की कि यह कसास और दियत का मामला है, दियत अदा करें ताकि गरीब को इंसाफ मिल सके। लेकिन गरीब को क्या इंसाफ मिलता, मुझे ही सीट से हटा दिया गया। इसी तरह का एक केस इस्लामाबाद में भी हुआ। अदालत से एक इंतहाई ताकतवर बिजनेसमैन का वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ। मैंने जब अपने लोगों को कहा कि वारंट की तामील की जाए तो सब सटपटा गए। ऊपर से भी प्रेशर आना शुरू हो गया कि इनको हरगिज गिरफ्तार ना किया जाए। मैंने मासूमन अंदाज में अदालत का हुक्मनामे के हक में दलाइल दिए। वो क्या गिरफ्तार हुए, उल्टी मुझे ही डांट पड़ गई। एसएसपी इस्लामाबाद के ज़माने में तो बड़ा लतीफ़ा हो गया। अभी चार्ज संभाला ही था कि शहर में एक गाड़ी चोरी हो गई। हुक्म आया कि शहर में हरगिज़ कोई गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस्मत को शायद हमारी एसएसपी की पोस्ट अच्छी नहीं लग रही थी। अगले रोज़ मज़ीद 2 गाड़ियाँ चोरी हो गईं और फिर हर रोज़ कोई ना कोई काबिल ज़िक्र जुर्म की वारदात होती। ऊपर से कहा गया कि हमारा हुक्म था कि गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए, फिर हमारी हुक्मदुली क्यों हो रही है? जान की अमान मांग कर अर्ज़ किया कि जुर्म ना आपके हुक्म से होता है और ना ही रुकता है। ये जराइम हमेशा लोग करते हैं जो हमारे मातहत नहीं। जुर्म रोकने के लिए इसका सद्देबाब करना ज़रूरी है, जो हम कर रहे हैं, और चोरी शुदा गाड़ियों को बरामद करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़े साहब बाजिद रहे।
कि जब उन्होंने कह दिया कि गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए तो क्यों हुई? नो मोर डिस्कशन। अगर सरकारी नौकरी में आप हाँ में हाँ मिलाते रहें या यस सर करते रहें तो ठीक, वरना डांट खाने के लिए तैयार रहें। ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात नहायत दर्दनाक होते हैं। अक्सर लोग मुआशरे में बदनाम होने के डर से उनको दबाने या छुपाने की कोशिश करते हैं। हमारे एक सियासी रहनुमा ऐसे वाक़यात में ज़ाती दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। जूं ही कोई वाक़या होता तो फ़ौरन मौके पर पहुंच जाते, फ़ोटो सेशन होता, अखबार और टीवी में ख़बर चलती और जूं जिसको नहीं भी मालूम था उसको भी पता चल जाता, बल्कि पूरे मुल्क में ख़बर आम हो जाती कि कहाँ और कैसे ज़्यादती हुई। और इसके बाद खामोशी। ऐसे ही एक वाक़े पर जनाब हस्बे आदत पहुंच गए। मैं भी वहां मौजूद। पूछा गया, एसएसपी साहब ये वाक़या कैसे हुआ? मैंने जवाब देने की कोशिश की कि मुलजिम एक टूटी हुई फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, ना तालीम अच्छी ना ही तरबियत, हवस का मारा हुआ था और मौका मिलने पर नहती और मजलूम औरत के साथ ज़्यादती कर बैठा। हम तहकीकात कर रहे हैं और मुलजिम को करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। कहने लगे, नहीं, मैं पूछता हूं कि यह वाक़या कैसे हुआ। मैं थोड़ा हैरान हुआ और फिर कुछ तफसील बताने की फिर कोशिश की। अब जनाब का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऐन इस मौके पर डीआईजी साहब तशरीफ लाए और एक मंझे हुए और जहांदीदा ऑफिसर थे। उन्होंने डीआईजी साहब से शिकायत करते हुए कहा, मैं एसएसपी से पूछ रहा हूं कि यह वाक़या कैसे हुआ और ये मुझे उल्टी सीधी कहानियां सुना रहा है। डीआईजी साहब ने जवाब दिया, सर आप मुतमईन रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। कहने लगा, दिस इज द आंसर। हाँ, यह जवाब होना चाहिए। और मुतमईन होकर खुशी खुशी चले गए। कहां अफसर शाही और कहां गरीब छोटे मुलाजिम। सिबी में तैनाती के दौरान एक सरदार ने खाने पर बुलाया, खूब एहतमाम किया हुआ था, जैसे कि अमूमन इलाके के सरदार किसी भी दावत पर जाते हैं और उनकी दावत करते हैं। अगले रोज मालूम हुआ कि मेरा गनमैन और ड्राइवर दोनों की तबीयत बदहजमी की वजह से खराब हो गई है। मैंने उनको बुलाकर सरजनिश की कि क्यों ज्यादा खाना खाया। उनके जवाब से मेरे पांव तले जमीन निकल गई और दिल ही दिल में सख्त शर्मिंदा हुआ। उनका जवाब था, सर हमें तो याद भी नहीं कि हमने आखिरी दफा गोश्त कब खाया था। कभी कभी मुआशरे का यह तजाद। Thank you, Mr. Mahmood. Your voice really is a symphony, I would say. And now I would request Acting President IPRI, Brigadier Retired Dr. Rashid Wali Janjua to deliver his vote of thanks.